जो समय एक बार बीत जाता है वह दोबारा नहीं आता। इसीलिए व्यर्थ के कामों में अपना अमूल्य समय बर्बाद किए बिना अपना मन पढ़ाई व जरूरी कामों में लगाइए। Good morning everyone, welcome to Study Zone IQ, and today we are going to solve some equations related active and passive voice. This is important topic regarding competitive exam, and usually we use active and passive voice while speaking. If you want to speak correctly and write correctly, so subscribe this channel and stay with this channel. Study Zone IQ provide some of the other subjects also, and it will enhance your knowledge. So stay with this channel, subscribe the channel. So let's start the class. Friend, we have covered 4th videos related active and passive voice. This is 5th video on this topic. So first 2 videos I have described what is active and passive voice. I explained formulas related to them, and 2 and 3 videos we have practiced equations related to active and passive voice, and in this video we are going to solve some equations related to active and passive as well. So friends, let's start the class. First sentence is, a fresh batch of eggs was collected by the farmers. So friend, you have to understand this is sentence of passive voice, not active voice. How can we recognize, how can we identify this is sentence of passive voice? Friend, you can see that there is a helping verb, and after helping verb we are putting third form of the main verb, and here is a by before object. So this is a identification of passive voice, right? We have to use helping verb, and then after we have to put third form of the main verb and by before the object. So friend, this is passive voice sentence, and this sentence we have to convert active voice. Let's start. Friend, in active voice object becomes a subject and subject becomes object. So here in passive voice, what is object? The farmer is object. So in active voice the farmer will become subject, right? And in active voice a fresh batch of the eggs was collected by the farmers. In this sentence what is subject? In this sentence a fresh batch of eggs is the subject. So in passive active voice this becomes object. Let's start. The farmer, this is a past indefinite active voice, right? So friend, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव वॉइस होता है वो किस वाले टेंस का बनता है। ऑब्वियसली बात है पास्ट इंडेफिनिट का बनेगा, और वॉज और वर किस वाले टेंस में आता है जब हम उसका पैसिव बनाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस में आता है वॉज वर। तो हमें पता चल गया कि ये जो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का है। चलिए अब हमें इसको एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, पास्ट इंडेफिनिट में इसको कन्वर्ट करना है। अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूँ तो इसको मैं पास्ट इंडेफिनिट के टेंस में कन्वर्ट करना है। और पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, अभी मैंने टेंस का चैप्टर नहीं करवाया है, इसके बाद आने वाली वीडियो टेंस पर ही आधारित है। अगर आप लोगों को टेंस सीखने हैं और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और आपको इस चैनल में इंग्लिश से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगी, आई होप मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव रिप्लाई सून। लेट्स स्टार्ट। चलिए राइट, अब देखिए, अब पैसिव वॉइस की ठीक है हमने एक्टिव की तो पहचान बता दी, अब पैसिव की क्या होती है? पैसिव की पहचान सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट।
देखिए फ्रेंड, बाई को मैं कम इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैसिव वॉइस है जहाँ बाई नहीं दिया होता है, बाई के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है नहीं दिया होता, बस यहीं तक ही बात की जाती है। अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स वॉज कलेक्टेड, बस यहीं तक बात की जाती है। बट दिस इज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वी आर सपोज टू write in formal way, right? So we have to understand and we have to learn each and everything, right? So we can convert it active voice. The farmer collected, ठीक है, we have to remove was because we have to convert it into past indefinite. तो past indefinite की पहचान होती है subject, main verb की second form object. The farmer, अब ये वर्ब है तो इसका सेकंड फॉर्म कलेक्टेड ही होती है, थर्ड फॉर्म भी कलेक्टेड ही होती है। द फार्मर कलेक्टेड अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स। आई होप फ्रेंड आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस, वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट, राइट? वी एडेड अप द मनी एंड फाउंड दैट इट वॉज करेक्ट। फ्रेंड, अब आपको देखना है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस है, क्योंकि एग्जाम में हमें पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी दिया जाता है एंड वी आर सपोज टू दैट सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस। सो एट दैट मोमेंट वी शुड लर्न हाउ टू रिकॉग्नाइज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। दिस इज द मेन important root of this topic. You are supposed to learn how to identify active and passive voice, right? अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब, राइट? आप देख सकते हैं यहाँ पर इट वॉज करेक्ट है। ये फ्रेंड एक सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस जब होता है तो उसमें कोई वर्ब नहीं होती है, राइट? ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कोई मेन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, लेकिन मेन वर्ब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो दो तरीके के सिंपल पास्ट टेंस होते हैं फ्रेंड, जैसे एक में होता है कि सब्जेक्ट दिया जाता है और मेन वर्ब दी जाती है, राइट? जैसे आई प्लेड, मैं खेलता हूँ, और कैसे, और दूसरे कैसे बोल सकते हैं, इट वॉज करेक्ट, वो सही था। तो ये दोनों पास्ट इंडेफिनिट के ही सेंटेंस है, लेकिन देखिए दोनों में अंतर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं बोलूँगी इट वॉज करेक्ट तो यानी वो सही था, ये सिंपल तो है बट इसमें कोई मेन वर्ब नहीं है, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू काम कर रहे हैं। इसमें हम किसी की विशेषता, हाँ वो ठीक था, राइट, हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं। लेकिन उस चीज में हम क्या कर रहे हैं, हाँ आई प्लेड यानी मैं खेला, राइट, आई डिड इट यानी मैंने ये किया, यानी मैंने कर दिया, राइट? तो इस टाइप से। हाँ चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था, एनीवे लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड, जो ये सेंटेंस है ये हमारा एक्टिव वॉइस का है, राइट? अब हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रेंड वो सब्जेक्ट बन जाता है और जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। चलिए, द मनी, राइट? अब देखिए फाउंड टू बी, फ्रेंड ये जो हमारा द मनी है ये हमारा इस वाले सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, और जो वी है ये हमारा एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है। तो फ्रेंड हमें ऑब्जेक्ट भी मिल गया और सब्जेक्ट भी मिल गया, तो हमारा पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से बन सकता है, राइट फ्रेंड? अब देखिए, अब पता चलना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है, तो उसी हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर एडिट लिखा है, तो एडिट क्या है, एडिट अप। तो एडिट क्या है फ्रेंड, ऐड होता है, तो एडिट क्या हो गया, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो गई। तो सेकेंड फॉर्म हो गई यानी ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है सब्जेक्ट के साथ। और पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम पास्ट इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है वो होती है वॉज एंड वर होती है। तो चलिए अब देखते हैं वॉज आएगा या वर आएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए सब्जेक्ट क्या है, द मनी। द मनी जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमारा वॉज का इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब की फिर थर्ड फॉर्म होगी। जो हमारा एड है, जो एडेड है वो हमारा थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एड सेकंड फॉर्म हो गई और एडेड ही हमारा क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। और फिर द मनी हमारा सब्जेक्ट बन गया और वी हमारा सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में अस बन जाएगा। वो हमारी मर्जी फ्रेंड, वो बाय अस हम लगाएं या नहीं लगाएं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हम चाहे तो सब्जेक्ट
कि हम बाय ऑब्जेक्ट को लगा भी सकते हैं और नहीं, देखिए सिर्फ बाय पीपल, अब हम इसको लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है, राइट, क्योंकि यहाँ पर वो उतना ज़रूरी नहीं होता, नहीं है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सेंटेंस भी आप देख रहे होंगे बहुत अलग टाइप का है, राइट, वो एक कॉमन सेंटेंस की तरह नहीं है। तो यहाँ पे हम अस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और कर भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं कर सकते हो, कर भी सकते हो, आपकी मर्जी है, बट यहाँ पे नहीं किया गया। चलिए, द मनी वॉज एडेड अप एंड फॉर्म्ड टू बी करेक्ट, जो पैसे थे उसको गिने गए और देखा गया कि वो सही हैं, यानी उनको सही पाया गया, राइट। इसमें क्या लिखा है कि वी एडेड, हमने पैसे को गिने और वो हमें सही, वो क्या थे, करेक्ट थे। और इसमें कहा गया है कि द मनी वॉज एडेड, कि मनी को गिना गया और वो कैसे माने गए, वो करेक्ट हुए, राइट। अब देखिए फ्रेंड, द मनी वॉज एडेड अप बाय, अगर आप बाय लगाना चाहें तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं बाय अस, ठीक है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड फाउंड टू बी, देखिए फ्रेंड, इट वॉज करेक्ट, फाउंड टू बी करेक्ट, हमको ये सेकंड फॉर्म में, हमें ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या होता है कि जो कभी भी हमें अगर इस टाइप का कोई सेंटेंस है तो उसको हमें क्या करना है, टू बी हमें ऐड करना होता है, राइट फ्रेंड, हमें टू बी ऐड करना होता है। और बी के बाद, यानी अगर बी है तो समझ जाइए वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, लेकिन सिंपल सेंटेंस है, कोई वर्ब इसमें इस्तेमाल नहीं की गई है। फाउंड टू बी करेक्टेड, यानी सही पाया गया। अब किसको सही पाया गया ये हमें नहीं पता, किसको मिले सही वो हमें नहीं पता, तो इसलिए ये सेंटेंस किसका हो गया, पैसिव वॉइस का हो गया। चलिए, ही लाइक्स अ पीपल टू कॉल हिम सर, ठीक है, वो लोगों को पसंद करता है जो उसको सर बोलते हैं। बहुत सिंपल सेंटेंस है, ही लाइक्स पीपल टू कॉल हिम सर, उसको पसंद है कि लोग उसको सर कह के बुलाएं या उसको सर बोले, उसको पसंद है, उसको अच्छा लगता है कि लोग उसको सर बोलें, है ना। चलिए, ही लाइक्स टू बी कॉल्ड, यानी उसको क्या पसंद है, उसको क्या कहलवाना पसंद है, सर कहलवाना पसंद है, कि लोग उसको सर बोलें, किसके द्वारा, लोगों के द्वारा, ठीक है। उसको पसंद है टू बी कॉल्ड सर, उसको सर कहलवाना यानी बुलवाना पसंद है लोगों के द्वारा, कि लोग उसको सर बोले, राइट फ्रेंड। देखिए यहाँ पे ये वाला ही नहीं है, राइट, ये ही आपको लग रहा होगा ये ही नीचे आ गया, नहीं, ये ही वाला नहीं है, ये देखिए ये वाला ही है, राइट, ये हिम है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो अब ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो यहाँ पर ये वाला ही आ रहा है, ये वाला ही नहीं आया है, राइट फ्रेंड। आप थोड़ा गौर से देखिए, ये वाला ही है, ये वाला ही नहीं आया है। ही लाइक्स, उसको पसंद है, वो पसंद करता है, टू बी कॉल्ड सर, यानी सर कहलवाना पसंद करता है, क्योंकि देखिए सिंपल सेंटेंस है, खाली एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए टू बी सर, टू बी कॉल्ड, यानी तो ये सेंटेंस किसका हो गया, पैसिव वॉइस का, कॉल तो कॉल्ड हो गया, राइट बी। अब देखिए फ्रेंड, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, अब हमको इसको क्या करना है, यहाँ पे टू कॉल लिखा है, तो हमको इसको तो पैसिव बनाना है। अभी टू फ्रेंड यहाँ देखिए, आपने यहाँ पे देखा कि टू है, राइट। अब क्या होगा, टू के बाद आप याद रखें कि मेन वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ये एक फैक्ट है, इसको आप बैठा लीजिए कि मेन वर्ब के बाद, टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और हैज़ और हैव के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म आती है, जो बेस फॉर्म होती है वही फर्स्ट फॉर्म भी होती है। तो टू के बाद कॉल आना है, अब कॉल फ्रेंड बन जाएगा, कॉल आ जाएगा तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी, लेकिन पैसिव वॉइस कहता है कि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको थर्ड बनाना पड़ेगा। थर्ड फॉर्म कैसे बनाया जाएगा, तो पहले हमें इसके बी लगाना पड़ेगा, और बी के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। आपको पता होगा जब मॉडल वर्ब में हम लोग मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब की बेस फॉर्म ऐड की जाती है, जब उसको हमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, विल बी, शैल बी, कुड बी, माइट बी, मस्ट बी, तो इस तरीके से हमको बी का इस्तेमाल करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर हम बी को क्यों लगाया जाता है, ताकि हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकें, राइट। बाय द पीपल, लोगों के द्वारा उसको पसंद है, सर कहलवाना पसंद है। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, स्टडी जोन IQ प्रोवाइड्स एजुकेशनल इन्वायरमेंट, राइट। जो स्टडी जोन IQ है वो क्या करता है, एजुकेशनल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। चलिए अब देखिए, एजुकेशनल इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है,
राइट। हमारा एक्टिव वॉइस में जो हमारा इन्वायरमेंट एजुकेशनल इन्वायरमेंट है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो पैसिव वॉइस में ये सब्जेक्ट बन जाएगा। स्टडी जोन IQ यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है और पैसिव वॉइस में ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फ्रेंड क्या करता है, प्रोवाइड्स करवाता है। क्या ये प्रोवाइड्स आ रहा है क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। कैसे पता चला, क्योंकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, उसके साथ एस या ES का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान। अब आपको पता होना चाहिए, आपने पहली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते टाइम हमें इज MR का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यानी R आ जाएगा। अगर सब्जेक्ट I है तो उसके साथ M आ जाएगा और मेन वर्ब, इन सबके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। चलिए, एजुकेशनल इन्वायरमेंट ठीक हो गया। एज क्यों, क्योंकि एजुकेशनल इन्वायरमेंट क्या है, हमारा एक सब्जेक्ट है तो सिंगुलर है तो ई जाएगा। प्रोवाइड्स का हमें थर्ड फॉर्म बनानी होगी, क्या होता है, प्रोवाइडेड बाय स्टडी जोन IQ, यानी हमें एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है बाय स्टडी जोन IQ। फ्रेंड आप यहाँ तक भी बोल सकते हैं, राइट, एजुकेशन इन्वायरमेंट इज प्रोवाइडेड, यानी एजुकेशन इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है। किसके द्वारा, अगर आपको बताने किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है तो आप बाय एजुकेशनल जो बाय स्टडी जोन IQ। फ्रेंड इस तरीके से आप एक्टिव पैसिव वॉइस को सीख सकते हैं। आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाना सीख सकते हैं। कहीं कहीं पर बहुत लंबा सब ऑब्जेक्ट आ जाता है, जैसे एक सेंटेंस था फ्रेंड हमारा, द फार्मर कलेक्टेड, ये देखिए अ फ्रेश बैच ऑफ एग्स। देखिए यहाँ पर ये कितना बड़ा सब्जेक्ट है, राइट। अब ये आपको थोड़ा आपको यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, मेन हेल्पिंग वर्ब से पहले जो भी सेंटेंस होता है ना, जो भी वर्ड होते हैं वो सब्जेक्ट होता है, राइट। मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, उससे पहले आने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इनके बीच में कहाँ है, नहीं है, यहाँ आ रहा, तो समझ जाइए कि इससे पहले वाले जो भी हैं ये हमारा सब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि जहाँ से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब और वर्ब स्टार्ट हो जाता है वहाँ से फिर हमारा उससे पहले के जो भी वर्ड होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। फिर उसके बाद हमारा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। और हेल्पिंग वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट जो शब्द होते हैं वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। अब अगर आपको अभी भी नहीं आया है तो फ्रेंड हो सकता है आपको तकलीफ हो रही होगी, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस क्या कीजिए, जो वीडियो पढ़ा रखा है आगे से उसको दोबारा देखिए, हर वीडियो को दोबारा देखिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, बुक से प्रैक्टिस कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करिए, आपको डेफिनेटली आप बहुत अच्छे बन जाएंगे इस एक्टिव पैसिव वॉइस में। मैंने आपको 4-5 वीडियो करवा दी हैं, आप सबको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। जो नहीं आ रहा है आप पूछिए कमेंट बॉक्स पे और मेहनत कीजिए फ्रेंड, और टाइम बिल्कुल वेस्ट मत कीजिए। चलिए, हम लोग ने अपना आज एक्टिव पैसिव वॉइस कंप्लीट कर दिया है। वी हैव कंप्लीटेड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू, वी विल स्टार्ट टेंस, जो बहुत मतलब दिस इज़ अ रूट ऑफ एवरी टॉपिक, राइट, बीट इट डायरेक्ट इनडायरेक्ट एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, right, noun, pronoun, everything, sentence writing, right. So at that moment tense is a root of every topic and you are supposed to learn, right. You don't have any confusion related to tense, right. Then after you can solve each kind of questions, क्योंकि हम जब एक्टिव पैसिव वॉइस सॉल्व करते हैं तो क्या वी आर सपोज टू पुट वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, तो हाउ कैन वी पुट दैम when we have good knowledge of tense, that then after we can use helping verb properly, otherwise we will not be able to use verb and helping verb properly because we didn't know about which kind of helping verb will be put here. तो फ्रेंड in this next video we are going to do tense. so अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो आप इसके साथ बने रह सकते हैं। और till the time, stay happy, keep smiling and never give up friends. All the best. Thank you so much.